कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा घोटाले से संबंधित आरोपों को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। ये फैसला आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की ओर से दर्ज शिकायत के बाद लिया गया है। राज्यपाल ने इस मामले में सिद्धारमैया समेत उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले समेत कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। And is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. वहीं कर्नाटका के साउथ बेंगलुरु सीट से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कर्नाटक सरकार खुद मामले में घोटाले की बात को लेकर सहमत थी, इसलिए उन्होंने 2 बार मामले की जांच के लिए कमीशन बनाया। And so serious in nature that the government of Karnataka under the leadership of Chief Minister Siddharamaiah itself appointed earlier a single-man inquiry commission headed by a former retired IAS officer, and a couple of weeks later the Chief Minister and the Karnataka government also appointed another commission to inquire into these allegations headed by a former judge of the Karnataka High Court. So the allegations are so serious that their own government has constituted not 1 but 2 commissions of inquiry, one headed by a retired IAS officer and one headed by a former judge of the Karnataka High Court to look into these allegations. Therefore, the Congress party's argument today that the action of the governor to provide sanction for prosecution is colored politically is not right. It falls on fallacious grounds, because the government itself, the Karnataka government itself at the highest levels was convinced that there is some kind of irregularities, is why they had appointed 2 commissions to look into these allegations. इस मामले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गवर्नर की ताकत का इस्तेमाल कर हमारी सरकार में अस्थिरता लाना चाहते हैं। There is a strong government headed by Mr. Chief Minister Siddharamaiah ji in the entire country. It is one of the biggest state where the second time a backward class leader has been elected with a massive mandate of 136 members and 2 independents who have been supporting our 2-3 independents supporting our party. They are trying to destabilize by using the governor's office. It is unfortunate. There are various decisions, and the constitution, there is a constitution which will help us. No political party or the BJP is trying to destabilize this government. I am on record. At no point of time, my chief minister will not yield to any pressure. There is no question of him resigning. He will continue to stay in the office. We all stand unitedly, the entire party in this Karnataka, the entire legislature of 138 legislators of this house will stand unitedly with him. We support him. He has not done anything wrong. मुडा स्कैम में लग रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन ना दें। फिर साल 2020-21 में भाजपा की सरकार आई, तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया। इसके बाद सरकार ने उन्हें यह जमीन दी। बीजेपी मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रही है। जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया उसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है। हमारी जमीन पर कब्जा हो गया था, इसलिए मुडा ने हमें दूसरी जमीन दी। हमने कोई स्पेशल एरिया नहीं मांगा था। हमारी जमीन पर पार्क बना दिया गया है। इसमें किसकी गलती है? तब राज्य में कौन सरकार चला रहा था? क्या मुझे अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए? अब आपको मुडा स्कैम और सिद्धारमैया पर लग रहे आरोपों के बारे में बताते हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में मुडा कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह संस्था का काम है मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, माने बुनियादी ढांचे का विकास
करके लोगों को कम दामों पर घर मुहैया करवाना। साल 2009 में मुडा ने एक योजना लॉन्च की 50 बाय 50। इस योजना के तहत जिन भी लोगों की जमीन को मुडा अधिग्रहित करता था उन्हें विकसित जमीन की 50% जमीन आवंटित कर दी जाती थी। हालांकि साल 2020 में भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती की मैसूरू के कैसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि थी। सिद्धारमैया का दावा है कि उनकी पत्नी को यह जमीन उनके साले मल्लिकार्जुन ने साल 1998 में गिफ्ट की थी, लेकिन एक्टिविस्ट कृष्णा का आरोप है कि मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में अवैध तरीके से यह जमीन हासिल की थी और फर्जी दस्तावेजों के दम पर इसे रजिस्टर करवा लिया था। लेकिन जमीन के कागजों पर दिखाया गया है कि यह जमीन साल 1998 में खरीदी गई है। मुडा की 50 बाय 50 स्कीम के तहत साल 2021 में सिद्धारमैया की पत्नी के नाम पर यह जमीन अधिग्रहित की गई। इसके बदले में पार्वती को एक महंगे इलाके में 14 साइट्स आवंटित की गई थी। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला बता चुके हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।